ओके, तो आप देख सकते हो। चलो रीडिंग करते हैं इसको। डायरेक्शंस, भैया यही वाली दिखा रहा था, शेयर में जाती ओपन कर। हाँ करो, फोल्डर ये क्लास में। हाँ, ये वाली लाइट की वजह से बंद कर दो। और वो देखो ना, ये वो मैंने से ये बंद हो गया, चेक करके ऑन नहीं होगा। चलो ठीक है, एज यू कैन सी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फॉर द शॉर्टर पैराग्राफ आर्गुमेंट क्वेश्चन, the reading is fairly straightforward. Just read the paragraph from beginning or end. Pay close attention to every word and be prepared to do a careful reread after you look at the question. For longer passages, approaches to reading need to be more cautious and strategic. Obviously, you want to pace your reading properly so you can finish RC in a reasonable amount of time. तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. We need to finish our passage in appropriate time so that we will be able to solve all the passages uh, included in the section, in each section. Okay, because we will encounter passages in each of the sections related to class. Okay, and IPM only in English section. So, but RC success isn't a mere matter of reading quickly. In fact, there is no point in being fast if you are not getting the questions right and nailing the first few reading comprehension questions, but then running out of time for the rest of the section won't do much for your overall score. So what you have to do is not just fast reading is enough, you have to comprehend the passage properly so that you will be able to answer all the questions. So you need a strategy that lets you work quickly and accurately. 4 methods of reading and information processing include skimming, scanning, speed reading, and critical reading. As we have already discussed all these things, skimming, casual reading, okay, not serious, but fast. Scanning, fast reading, but in order to note down all the important facts. Then you have to, along with, you have to go
very you have to do speed reading also and critical reading so that you will be able to comprehend, infer whatever facts have been given. We learned about skimming and scanning techniques in the earlier lessons also. Let's have a quick review. Skimming. Skimming is a reading technique used here to quickly identify the main ideas and thoughts of a passage while under time constraints, especially if it's subject matter with which you are unfamiliar. Skimming is a form of speed reading that involves scanning. So, in this section, they are telling that skimming falls under scanning falls under skimming only. That's why they have mixed it, and they are telling you that fast reading and capture the main points of the passage. Scanning sentences and paragraphs for clues to understanding, uh, mainly used to get an overall feel for the context. In skimming, you should try to identify the meaning or purpose of the passage, the information provided in the passage, the central theme, separate the main ideas from supporting ideas. Yes. Read the passage. As you read, make mental notes or on main ideas, key points and information and key words. This will help you and save your time. You won't have to go back and forth in order to find out the answers. Step three is sum up the information. Try to summarize the passage and track the details as you move through the material. These techniques work especially well if you tend to lose concentration as you read. Remember, you don't need to write down or remember every detail and key point. You just need to know where to find them. Learn to read critically. To be a critical reader, you must think critically. Critical reading means to read with a purpose, understand how each paragraph fits into the overall theme and evaluate arguments and evidence. तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल रीडिंग करना है जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि क्या पॉइंट्स दिए हैं और क्यों ऐसे दिए हैं और क्या हो सकता है. प्रैक्टिकल yes, you have to do a lot of practice in order to gain all these skills. Okay, practice exercise. Directions for questions 1 to 30. Each set of questions in this section is based on a single passage. Please answer each question on the basis of what is stated or implied in the corresponding passage. In some instances, more than one option may be the answer to the question. In such a case, please choose the option that most accurately and comprehensively answers the question. अब देखो, हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है और ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको उसमें से भी बेस्ट चूज करना है. ठीक है, तो सबसे पहला हम पैसेज 1 देखेंगे. Go through this passage. Read passage number 1.
ओके, तो यहाँ पर आपने पहला पैसेज देखा और आपसे बन भी गया होगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज? तो यहाँ दो चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? मुझे दो आवाजें आ रही है, सी, डी और बी लग रहा है। तो बी लग रहा है, पास्ट रिस्पॉन्सेज to major media disruptions can inform our approach to present day technological change. Yes, ये इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। और ये हमको कैसे समझ में आता है? किस बात पे हम फोकस करते तो हमको समझ में आता है? इसको पढ़ेंगे अगर यहाँ पर तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? गुड। ओके, तो लेट्स मूव टू पैसेज टू, गो थ्रू इट।
ओके, व्हाट इज द आंसर? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू ए। बाकी क्यों नहीं होंगे? बी सी डी क्यों नहीं है? कैसे लग रहा है आपको? ए ही होगा। हम्म। यस, वेरी गुड। यस, बात नहीं हुई है इसके बारे में। और बी क्यों नहीं आपने सिलेक्ट किया? और कहीं नहीं लिखा है कि कंज्यूमर्स रिलाई मेनली ऑन। ये तो कहीं मेंशन नहीं है कि वो किस पे रिलाई करते हैं। और डी क्यों नहीं लिया? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, थ्रू आउट द पैसेज। ओके, तो इसीलिए ए सही है, जिसमें सारी बातें सिग्नलिंग थियरी की भी बात हो रही है और ब्रांड परफॉर्मेंस की भी बात हो रही है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पैसेज है, इसीलिए कुछ डाउट्स रह सकते हैं आपके मन में, इसलिए बाकी ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पैसेज 3 देखेंगे। गो थ्रू पैसेज नंबर 3। हेलो तक्षिका। यस मैम। तक्षिका, हाँ तक्षिका, आपने होमवर्क किया? ओके तक्षिका, वेरी गुड। पूरी क्लास अटेंड कर लेना, तुम क्लास आओगी क्या? हो गया आप लोगों की रीडिंग? ओके, क्या होगा इसका आंसर? द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जोर से बोलिए। बी होगा क्रिटिकल। आपने बाकी ऑप्शंस देखे? आ, बताओ कौन बताएगा, रिफ्लेक्टिव क्यों नहीं? आप मुझे एक बात बताइए, जब हम टोन देखते हैं ऑथर की, तो हमें कैसे पता चलता है कि ऑथर की टोन कैसी है? कौन बताएगा?
मैंने बताई है ये वाली बात, पहले हम इस पर बात करते हैं क्योंकि एक डिफरेंट क्वेश्चन है। एक छोटी सी पैसेज दी हुई है और हमको उस पैसेज में से ये बताना है कि ऑथर की टोन कैसी है। ये आ सकता है एग्जाम में भी, 5 पैराग्राफ से किसी पैसेज में और किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द 5th पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज ऑथर की क्या टोन है, प्लीज बताइए कैसी टोन है। तो बताओ कौन बताएगा, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमें कैसे ऑप्शन को चूज करना होता है, हम किस बेसिस पे चूज करते हैं कि क्या टोन है ऑथर की। हम्म। भूल गए। देखो, जब कभी हमको ऑथर की टोन के बारे में फोकस करना होता है कि क्या टोन है ऑथर की, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि उनके जो वर्ड्स और स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमको थोड़े से फोकस करने होते हैं कि वो हमें वैसे ही पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा कि कैसी टोन है। तो हमको देखना होता है कि ऑथर ने किस तरीके से बात लिखी है, तो उससे हम फिर बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो इस पैसेज में, आपको क्या लग रहा है ऑथर कैसी बात कर रहे हैं, मतलब बहुत नॉर्मल बात कर रहे हैं या कुछ एक मेन मुद्दा उठा रहे हैं, और वो मुद्दा उठा भी कैसे रहे हैं, तो नॉर्मली उठा रहे हैं, बहुत ही कैजुअली उठा रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं ऐसा जो प्लस माइनस दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, विनिंग द सपोर्ट ऑफ ओल्डर वोटर्स में बी पॉलिटिकली इफेक्टिव, बट when the PM spoke of ushering in a new era, it was little more than wishful thinking. Wishful thinking इंसान करता है ना, हम विश तो करते हैं और हम ऐसे सोचते हैं, बट द गवर्निंग पार्टी शोज नो इंक्लिनेशन टू इन्वेस्ट मीनिंगफुली इन यंग पीपल। अब यहाँ पर देखिए क्लियर इन्होंने एक नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने रखा है, encourage innovation or support small enterprises. Instead, it prioritizes overwhelmingly favor retirees and established interest, यानी उनके अपने इंटरेस्ट है वो उस पर फोकस्ड है, इन बातों पे नहीं है जिससे आम लोगों को फायदा होगा। ठीक है, अब यहां तक हमको समझ में आ जाता है कि ऑथर जो है कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो, मतलब वो आवाज उठा रहे हैं कि जो चीज नहीं हो पा रही है उसके रिगार्ड में। Over the past decade, leaders who once promised hard work and long-term renewal now see a sluggish, state-heavy system. अब यहाँ फिर नेगेटिव बात। ठीक है, their frustration is evident in increasingly hostile reactions. कहीं पे भी ऑथर ने कोई पॉजिटिव बात बोली ही नहीं है इस पैसेज में। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं क्या है, और लास्ट में बोल रहे हैं सच अटेम्प्ट्स टू stifle dissent, stifle मीन सप्रेस, किसी चीज को दबाना, dissent means disagreement, reflect a political generation determined to clinch to power, यानी उसी से टिक रहना है, बस पावर चाहिए, काम नहीं करना। इवन इफ डूइंग सो रिक्वायर्स बिट्रेइंग द वैल्यूज, मतलब हर पॉइंट में ऑथर नेगेटिव बात लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, अम्यूज्ड, सेलिब्रेटरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे ऑथर। अब रही बात रिफ्लेक्टिव की, इस वर्ड, ये वर्ड इंडिकेट करता है डीप थिंकिंग, डीप एंड केयरफुल थिंकिंग, और है क्रिटिकल। देखो, रिफ्लेक्ट ऐसा होगा कि दो ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक बेस्ट आपको चुनना होगा, तो आपको ये ऑप्शन चुनना है जिसमें एक दूसरा वाला ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है वो उसी में आ जाए, मतलब वो दोनों को कवर करे। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव है वो क्रिटिकल में आएगा। भाई कोई क्रिटिकल कैसे हो सकता है, पहले वो डीप थिंकिंग करेगा फिर ही वो प्लस माइनस बताएगा। क्रिटिकल क्या है, यानी एनालिटिकल है और वो बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये बात और है कि यहाँ कुछ पॉजिटिव बताने लायक नहीं था, तो ऑथर ने नहीं बताया, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, क्रिटिकल, नॉट रिफ्लेक्टिव, क्योंकि रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल का ही एक हिस्सा है, ऐसा आप मान सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको त्रिशा, डाउट क्लियर? ओके, नाउ पैसेज 4 देखते हैं हम, पैसेज 4 रीड करेंगे।
ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, we can infer that the passage is primarily about, यानी यहाँ पर ये मेन आइडिया पूछ रहा है। क्या होगा इसका आंसर? D for Delhi, B for ball. How many of you agree with Delhi? And how many of you option B ball? There is some confusion. क्यों है ऐसा? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि B होना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन चाहते? B for ball. ओके, तो तुम ये कह रही हो कि B में क्या दिया हुआ है? अच्छा, ठीक, तुमको ये लग रहा है कि सारी बातें हुई हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन डी चाहते हैं उनको क्या लग रहा है और क्यों लगता है उनको डी होना चाहिए? लास्ट पैसेज के बारे में क्या बताया है? बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको आफ्टर ऑल पैसेज में से ही देखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। तो हम जब पैसेज को रीड आउट करते हैं तो हमको पैराग्राफ नंबर 3, आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 3 स्टेटस जहां लिखा है ना, यही वाले पैराग्राफ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखो, जो ऑथर हैं वो क्या बता रहे हैं। Over the past 3 years, I have conducted research into pressure with hundreds of high performers in our field and found that pressure is a function of three things: the importance of a situation's outcome, the uncertainty of the outcome, and the volume of tasks, decisions, and distractions surrounding the outcome. अब यहाँ पर ये एक रिसर्चर भी हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, और जो पैराग्राफ की जो क्लोजिंग लाइन है उसमें आप देखो, ये पैराग्राफ तो है ही, यहाँ पर जो क्लोजिंग लाइन है, सच क्वेश्चंस force them to challenge their view of what is in play when confronting a high pressure work related challenge. स्पोर्ट्स क्या है? एक काम है उनका, उनको वो करना है, ठीक है, वो उनका प्रोफेशन है। तो यहाँ पर ये जो बात बोल रहे हैं इसको आपको समझना है। इन्होंने जो रिसर्च किया है ये ओवरऑल किया है और स्पोर्ट्स पे भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो सकते हैं? क्या ये स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं? क्या ये स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट होंगे? या फिर ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, या फिर ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है? क्या होंगे? देखो यहाँ पर ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट हैं, तो क्या स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट पहले फील्ड में जाके रिसर्च करेगा फिर कॉलम लिखेगा? वो लोग तो एनालिटिकल होते हैं, वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, रिव्यूज देते हैं अपने, तो वो कॉलम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या होने के चांस ज्यादा है? यस, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, की मैनेज कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की फील्ड में भी रिसर्च किया और बताया कि कैसे, क्योंकि वर्क का प्रेशर भी होता है, जो फील्ड में प्रेशर होता है वैसे ही हर फील्ड का अपना अपना प्रेशर होता है, तो वो उसको स्टडी कर रहे होंगे। और इसीलिए सजेशन as to what managers should do to effectively manage star performers in high pressure situations, क्योंकि मैनेजर तो सभी फील्ड में है ना, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर होते हैं, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी डेफिनेटली हाई परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स होते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है
डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ respect to Geir Jordan's study about penalty kick, identify the correct statement. ओके, सी, यस, इट इज द करेक्ट आंसर। और आपको कैसे पता चला, कौन से पैराग्राफ में इसका डिस्कशन हुआ है? वेरी गुड, सेकेंड पैराग्राफ में ये डिस्कस हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट स्टार परफॉर्मेंस शुड डू व्हेन अंडर प्रेशर। When under pressure, star performers should systematically reduce the stakes and consequences they associate with potential failure. और ये कहाँ डिस्कस हुआ है? फोर्थ पैरा में डिस्कस हुआ है ये देखो, ये देखो यहाँ, ये पूरा बोला गया है। ठीक है, इसको मार्क कर लें, यहीं पे बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following can be correctly inferred from the passage? D for Delhi। आपको ये लग रहा है, कैसे पता लगाएं कि यही सही है? How can you deduce this answer? देखो, ओपनिंग लाइंस में ना इनके बारे में बताई बात हुई है ना? Simon Biles and Naomi Osaka have shown the story is not so simple. While success does indeed breed confidence, it can also increase visibility, multiply expectations, and raise pressure to unhealthy levels. When you are leading star performers, you need to recognize the double-edged nature of success. और आगे ये बात हुई है, even the greatest performers feel the pressure more than you might think. साफ बात बोली गई है यहाँ पर, एकदम ओपनिंग लाइंस में। इसीलिए जब पूरे पैसेज की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर ये जो बातें बोली गई है बट हैव रिसेंटली ऑप्टेड आउट ऑफ हाई स्टेक्स, ऐसी कोई बात वहां नहीं बोली गई है। यही सही है। और इन्होंने जस्ट एक कोट दे दिया है, इसीलिए हमको इन्फर करना है ना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करनी है। ये एक सिंपल कोटेशन दे दिया कि ऑथर कोट साइमन बाइल्स, आई होप अमेरिका स्टिल लव्स मी। ठीक है, टू शो हाउ अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम्स पुट प्रेशर ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, और वैसे भी सिर्फ एक को लेके चल रहा है, तो कंपैरेटिवली इसमें दोनों की बात भी हो गई है और ओपनिंग में भी ये वाली बात बोली गई है। और डी में फ्यूचर स्टार्स स्कोर्ड हायर देन करंट सुपरस्टार, तो ये जो इस तरीके से बताया जा रहा है फ्रॉम फैंस एंड मीडिया, तो बी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थ्री फैक्टर्स दैट क्रिएट प्रेशर? यस, और ये कहाँ डिस्कस हुआ है? हाँ, यहाँ हुआ है ना डिस्कस। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाए। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। बी इसका आंसर है। ठीक, पैसेज 5 देखेंगे।
So, what is the primary purpose of the passage? क्या होगा? B. To advocate for the inclusion of young adult literature in second language classrooms, particularly in Asian educational context. अब बाकी क्यों नहीं हो सकता? To argue the literature teaching in Western countries, to explain the historical development of literature, to critique the over-reliance on classical literature. क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ से तो हमें उतना क्लियर नहीं समझ में आता, क्योंकि मेन आइडिया की बात कर रहा है, प्राइमरी पर्पस मतलब। जब हम पढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं तो यहीं पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, particularly in Asian countries such as China and Japan, the use of literature in foreign language classroom is not a novel phenomenon. In the 21st century, the interplay and reciprocal relationship between language, literature, and culture has come to the fore as a type of authentic material. Literature is linguistically rich, culturally informative, and aesthetically engaging. Thus, in the past 2 decades, the use of literature in teaching a second language, foreign language, L2 has been gaining greater legitimacy and popularity, in particular the addition of YAL, which is less complex and more relatable as compared to classical literature in L2 classroom in secondary schools, has been expanding. यहाँ दिया ही हुआ है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसीलिए A, C, D नहीं, B होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, we can infer from the passage that the teaching of literature in L2 classrooms benefits a learner in all of the following except. किसने बी भी बोला? नहीं बोलना था ना, यहाँ देखो पैसेज में पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फायदे इनके बताए गए हैं. सबसे पहला फायदा ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिया है कंटेक्स्ट तक. उसके बाद सेकेंड वाला फायदा ये दिया है ना, पढ़ रहे हो, ये हो गया. उसके बाद तीसरा फायदा यहाँ से थर्ड, ये ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग यहाँ तक. ठीक, और जब इसको पढ़ लोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा. तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, नॉलेज एक्विजिशन, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. ऐसी कोई बात नहीं हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ we can infer that the use of literature in L2 classrooms helps develop students' language because of all of the following except. yes, अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है, मेन आइडिया आपको समझ में आ गया है, तो आप समझ जाओगे कि जो लास्ट पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ मतलब लास्ट पैराग्राफ है, वहां पे एक बात खास तौर पे बोली गई है. तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया? बाकी चीजें तो मेंशन नहीं, सही है, थ्रू आउट द पैसेज इन्हीं के बारे में बात हुई है, ये सब सही है, फायदे की चीज है. लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? आपने इसको क्यों चूज किया? टीचर्स के लिए बोला गया एक्चुअली. A common problem is teachers' lack of confidence in teaching complex classical literature. We should therefore prescribe GL as a part of teaching of literature. Teachers के लिए है ये, I mean students तक तो जाता ही है, इसलिए टीचर्स को भी मुश्किल होती है, इसलिए इसको उन्होंने डाल दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया है. और यहाँ पर क्या लिखा है? यंग लर्नर्स. ठीक है, relatable to the literature is quite relatable to the young learners of English as a, नहीं सॉरी, ये वाला अपन कौन सा ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना थर्ड पैराग्राफ में. हाँ, तो लिटरेचर इज क्वाइट रिलेटेबल टू द यंग लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स. यस, इसकी बात हुई नहीं है. ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी.
तो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ जो है, थर्ड पैराग्राफ जो है, वन वन सेकेंड, हाँ, जो थर्ड पैराग्राफ है ये वाला यहाँ पर जो बात हुई हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैनिफोल्ड रीजंस हैं क्यों लिटरेचर यूज होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिटरेचर इज एन इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वोयर, पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, पूरी बातें जो भी दी हुई हैं। लिटरेचर में भी may often be easier for young learners to understand. The creative use of language in literature can contribute to the young learners spoken language, creative writing, and more importantly, legitimizes original interpretation and a novel understanding of the literary text. तो ये सारी बातें जो है हमको यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, और जब हम वहां जा रहे हैं ऑप्शंस देखते हैं तो उसमें हमको समझ में आ जाता है कि लिटरेचर इज क्वाइट रिलेटेबल टू द यंग लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। यस, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट बताओ, इन द लास्ट पैराग्राफ, हाँ अब आया लास्ट पैराग्राफ। इन द लास्ट पैराग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ YAL in L2 classrooms, the author makes all of the following assumptions except, अभी तो समझा दिया था मैंने, ये ये ए नहीं होगा, ये तो सब सही है। YAL can help make the learners more worldly and sophisticated in their understanding, अंडरस्टैंडिंग की बात तो हुई है ना, कॉम्प्रिहेंड करने लगते हैं वो लोग। YAL can help the learners improve their mental perception, ठीक है, help learners improve their ability to understand and comprehend English language text more effectively। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर डी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ना पैसेज में डिस्कस हो गई है कहीं ना कहीं, पर ये पर्टिकुलरली लास्ट पैराग्राफ की बात बोल रहा है, तो लास्ट पैराग्राफ में ना कोई भी ऑप्शन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन ये गलत नहीं है, ए बी सी बिल्कुल सही है। तो क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया तो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पर देखो, लास्ट पैराग्राफ जो है, लास्ट पैराग्राफ में मैं वही तो बता रही थी आपको, अ कॉमन प्रॉब्लम इन टीचर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे टीचर्स की जो बात है केवल लास्ट पैराग्राफ में हुई है, बाकी पूरे पैसेज में कहीं पे भी टीचर्स को लेके नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है पूरा पैसेज। और केवल यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है कि टीचर्स को बहुत मुश्किल होती है, और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स तक ट्रांसफर हो जाता है। वी शुड देयरफॉर प्रिस्क्राइब YAL एज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ लिटरेचर इन सच L2 टीचिंग कंटेक्स्ट। और वहां पे क्या बोल रहा है, हम्म, नहीं वही मैं बोल रही हूँ, वो दिया हुआ है, लेकिन हम उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ये तो डिस्कस हुआ है ना। एक्चुअली में ये इनडायरेक्टली बोल रहा है, द इंक्लूजन ऑफ YAL कैन इंप्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर्स इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स लिटरेचर इफेक्टिवली। एक्चुअली में डील करने की प्रॉब्लम इनकी नहीं होगी, इनको तो कॉम्प्रिहेंड करना है, डील टीचर्स को करने के लिए है। आई मीन यहाँ लर्नर्स की जगह ना, क्योंकि ये बोल रहा है with respect to the inclusion of YAL in L2 classrooms, the author makes all of the following assumptions except, जबकि इन्होंने assumption दिया है लेकिन learners के लिए नहीं दिया है, टीचर्स के लिए दिया है। दैट्स वाई हम इसको फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करें। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, which of the which word from the passage is closest in meaning to validity or justification। Legitimacy is used in the phrase the use of literature in teaching has been gaining greater legitimacy। ठीक है, ये है, क्योंकि जो वैलिडिटी और जस्टिफिकेशन है कंड्यूसिव, इंपीरिकल और यूटिलिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब है हेल्पफुल, इंपेरिकल तो बेस्ड ऑन, एक इंपेरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो नॉलेज बेस्ड होती है, जिसमें प्रूफ होते हैं, है ना, हम पता लगाते हैं क्या रियलिटी है। तो इंपेरिकल रिसर्च इनटू लिटरेचर। और यूटिलिटी, किसी चीज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिए, दिया हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में,
In the past 2 decades, the use of literature in teaching has been gaining greater legitimacy and popularity. जिससे हमको समझ में आता है कि इस पैराग्राफ में जो बात हुई है वो जस्टिफाई करने के लिए हो रही है, प्रूव करने के लिए हो रही है कि उसके क्या फायदे हैं, येल को L2 क्लासरूम में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जबकि बाकी यूटिलिटी, लिटरेचर हैज मोर यूटिलिटी टू इट देन इज नॉर्मली नोन, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं निकलता। और इंपिरिकल रिसर्च इनटू लिटरेचर गेनिंग करेंसी, इसकी बात लास्ट पैराग्राफ में हुई है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। रिसर्च करने से हमें धीरे धीरे पता चलेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, लेकिन क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है यानी ऑलरेडी इस पर रिसर्च कंप्लीट हो गई है, तो जस्टिफाई करता है, वैलिड है, ठीक है, इसीलिए हमने बी ऑप्शन चुना है। ठीक, नेक्स्ट पैसेज देखिए, पैसेज 6।
ओके, फिर पहला क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? पी कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? पी होगा। यहाँ पे ओपनिंग लाइंस में दिया है, there's more than one way to burn a book, wrote Ray Bradbury in his anti-censorship class. Fahrenheit 451, the case of Kate Clancy, the Nobel Prize-winning author, currently rewriting her book after after identity-based outrage is one example. क्या से हमको साफ समझ में आता है कि इनकी बात हो रही है और क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिटी बेस्ड आउटरीच। क्लियर समझ में आ जाता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसके हिसाब से जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हम साफ समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पर इसी की बात हो रही है, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड आउटरीच यहाँ डिस्कस हुआ है, सेल्फ सेंसरशिप, रीराइटिंग ऑफ पब्लिश्ड वर्क्स, जबकि यहाँ पर टू एनालाइज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात हो रही है, ये नहीं है। टू डिफेंड स्टेट टीचिंग प्रैक्टिसेस नहीं। तो एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिशर्स, तो ये तो एलियन ही है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमको लगेगा डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे भी पहले क्लियर नहीं होता, और प्राइमरी पर्पस तो यही है, बी। ठीक, 15 देखते हैं। Kate Clancy is at the center of the controversy because, ओके, अब अगर हमको देखना है कि ये जो क्लैंची है, केट क्लैंची, इन्होंने क्या ऐसा कंट्रोवर्शियल बोल दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो थर्ड पैराग्राफ है, ऑल दिस एंड फॉर व्हाट, तो यहाँ लिखा हुआ है a handful of lines wrenched out of context. ठीक है, the main offenders are Clancy's descriptions of her diverse students, including phrases like chocolate colored skin and almond shaped eyes. ये यहाँ पर क्लियर बोला है, तो इससे ही पता चलता है कि उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उससे रेसिज्म रेसिज्म करके नहीं लिखा, लेकिन वही बात होगी ना डेफिनेटली, क्योंकि आगे जाते हैं तो हमको वो भी बात समझ में आ जाती है, तो उसके बारे में बात हो रही है। जब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो शी रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। डिड नॉट डिजर्व, she described some children in ways that were interpreted as convey prejudice and ableism. ये जो ableism है ये क्या होता है? What is this? Ableism. What is this? It is discrimination against, किनके अगेंस्ट होता है? डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑटिस्टिक पीपल्स की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये वर्ड को यूज किया गया है, तो इसलिए ये इसका आंसर। नेक्स्ट, why does the author use the word ironically in the passage? ऑथर ने पैसेज में ये वर्ड यूज किया है आयरनिकली, थर्ड पैराग्राफ में है।
थर्ड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ये, जिससे हमको साफ समझ में आता है कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं. Ironically, when it won the Orwell Prize, some kids was described by judges as moving, funny, full of love and offering sparkling insights into modern British society. और फिर जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमको साफ समझ में आ जाता है कि the fact that the judges praise the book undermines the current interpretation that it contains prejudiced language. यानी जजेस ने जब वो केस हाथ में लिया होगा तो उन्होंने जो बात बोली उससे जो बातें उभर के आ रही है वो उनको क्या करते हैं, वीक कर देता है, अंडरमाइन कर देता है. तो यही वाली बात ऑथर पूछ रहे हैं कि आयरनिकली क्यों उन्होंने वो वर्ड यूज किया, तो यही वाली बात के लिए किया है. जबकि द जजेस हु अवॉर्डेड द प्राइज आर एज प्रेजुडिस्ड, तो ये सब इन्फ्लुएंस नहीं है उसकी. ठीक है, द जजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक एज मूविंग एंड इंसाइटफुल इज इनएप्रोप्रिएट. हमको जजेस ने क्या बोला वो नहीं, ऑथर ने आयरनिकली क्यों यूज किया उसका आंसर चाहिए, जो ऑप्शन सी में दिया है. और ए ऑप्शन में भी दिया है कि Clancy's book should not have won the prestigious Orwell Prize given the prejudiced language. तो यहाँ पर ironically उसके लिए यूज नहीं हुआ है, ये तो सब इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर दिए इन्होंने कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Which of the following best reflects the author's implication about the outrage over Clancy's book? ये डिस्कस कहाँ हुआ है, कौन से पैराग्राफ में हुआ है डिस्कस? यस, बिल्कुल सही. क्या लग रहा है आपको, 17 का ए लग रहा है? ए भी हो सकता है, चलो देखते हैं. हाँ, तो फोर्थ पैराग्राफ में पहले हम पढ़ लेते हैं उसको. यहाँ लिखा है कि द ब्रिटिश पब्लिशिंग वर्ल्ड सीम्स टू बी इम्पोर्टिंग the identity based culture wars that have been raging in America. As you might be well aware that अमेरिका में एक प्रॉब्लम है, वो है रंग भेद, रेसिज्म. ठीक है, तो वहां पर काला गोरा इस तरीके से ऐसे डिस्क्राइब करते हैं. तो क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री के हैं तो वो मानते हैं कि वो गोरे हैं, भले ही उनका रंग वैसा ना भी हो. रंग मतलब वो ये मान रहे हैं कि जो आ, उनके देश का नहीं है वो काला है. तो यहाँ पर ये जो रंग भेद कहाँ से आया, उसकी बात यहाँ पे हुई है. और इसीलिए आप ऑप्शंस देखेंगे जब, the outrage over the book's language exploded now because the publishing team's failure in spotting the language. अब होता क्या है कि पब्लिशिंग टीम को वैसे ही दिक्कत नहीं होगी जैसे जजेस को नहीं हुई, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्पॉट आउट नहीं किया होगा, लेकिन ये उन पर डाल देना ये भी गलत. मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हुआ क्या है. द ब्रिटिश आर नाउ ओवरली पर्टिकुलर अबाउट आइडेंटिटी बेस्ड लैंग्वेज बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड क्वेश्चनेबल आइडियाज फ्रॉम अमेरिका. ये बात जो है पैसेज में दी हुई है, इसीलिए ये इसका आंसर है. नेक्स्ट देखो. ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन इन द पैसेज एक्सेप्ट टी. बाकी सब लगता है आपको डिस्कस किए गया है. बाकी लोगों को क्या लगता है, कंफ्यूजन है? ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में. फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, मैं अंडरलाइन कर रही हूं. ए ऑप्शन को आपने पढ़ा होगा. Clancy's sudden fall from grace in the publishing world is utterly mad, even by today's standard. आपको क्या लगता है ऑथर क्या शो कर रहे हैं? ऑथर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बायस्ड हो रहे हैं.
biased in favor of Clancy and critical of those who have denounced her book for prejudiced language. तो वहां पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद पहला पॉइंट जस्टिफाई हो गया. अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ में आएंगे. थर्ड पैराग्राफ में जब हम आते हैं तो हमको जो इसकी क्लोजिंग लाइन है, Clancy has actually nurtured pupils and helped get their poetry published. To suggest she's some hate monger is ridiculous. Hate monger कौन होते हैं? Who spreads hate. तो जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है, appreciative of Clancy's contribution to nurturing students and helping them get their poetry published and recognized. Appreciate कर रहे हैं ऑथर, justify होता है, सही है, दिया है पैसेज में. उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें तो फोर्थ पैराग्राफ में दिया हुआ है, but the lack of reaction back then was because even a few years ago people were less given to bouts of baseless hysteria than they are today. ठीक है, मतलब जब चाहिए तब नहीं. तो इस हिसाब से उन्होंने बस बोल दिया sarcastic when suggesting that identity-based culture wars are precisely what Britain needs during difficult pandemic times. ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा टी, क्योंकि ऑथर कहीं पे भी ऐसा शो नहीं कर रहे. Apologetic toward those offended by the language in Clancy's book and understanding of their emotional anguish. Anguish मतलब suffering. ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर. ओके, तो अब होमवर्क भी सुन लीजिए. आप लोग को होमवर्क करना है पैसेज नंबर 7 और पैसेज नंबर 8 आपका होमवर्क है. इसको आप बनाएंगे और साथ में जो वर्कशीट 4 है वो भी आपका होमवर्क है. ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम RS 5 एनी डाउट? इनको ब्रेक लेना है वो ले सकते हैं ना 5 10.
चल रही है। पूरा स्टेटमेंट देगा और 15,000 रुपये तो दिखा दिखा 15,000 रुपये दिख